السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پرجا پالنا کے فارمز فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریتو بندھو اور پینشن اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے نئے درخواست داخل نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس۔ BRS حکومت نے ہر محکمے کو مقروض بنا دیا۔ برقی خریدی کے 59,000 کروڑ روپے کا قرض۔ بدادری پروجیکٹ کا نائب وزیر اعلیٰ نے کیا دورہ۔ قرض کا راگ کب تک الاپتے رہیں گے؟ 6 گارنٹیوں پر کب عمل ہوگا؟ بھٹی کمار کا اپنے محکمے پر توجہ دیں۔ سابق وزیر جگدیشور ریڈی کا مشورہ۔ پرجا پالنا مراکز پر مجلس عوام کی رہنمائی میں۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور ارکان مقننہ دن بھر مصروف۔ حیدرآباد نمائش کا پیر سے ہوگا آغاز۔ تمام تر تیاریاں مکمل۔ عوام سے ماسک استعمال کرنے صدر نشین سوسائٹی کی اپیل۔ اور بھوانی نگر کے پاس دلقراش ٹرین حادثہ، 2 نوجوان ہوئے جاں بحق۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائیں۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری، اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بیسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور ناظرین، اب پیش خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پرجا پالنا کے درخواست فارم کی فروخت کی اطلاعات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے برہمی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہفتے کو عہدیداروں کے ساتھ اجلاس طلب کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ کوئی بھی اگر پرجا پالنا درخواستوں کی فروخت میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ریتو بندھو اور پینشن اسکیم کو لے کر استفادہ کنندگان کو کوئی شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ پرجا پالنا کے لیے ہر شخص کے لیے درخواست فارم دستیاب رکھا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریتو بندھو اور پینشن اسکیم سے استفادے کے لیے نئے درخواست داخل نہیں کرنی ہوگی۔
वज़ीर आला ने अब तक मौसूला दरख्वास्तों की तफसीलात के बारे में भी अहदेदारों से मालूमात हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तें जमा करने में किसी भी तरह की दुश्वारी पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने अवामी नुमाइंदों से भी प्रजा पालना प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। अहदेदारों को यह भी हिदायत दी कि प्रजा पालना दरख्वास्तों के अतकाल के लिए आ रहे अफराद को पीने का पानी फराहम किया जाए और उनके लिए शामियानों का इंतजाम किया जाए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हर महकमे को मखरूज बना दिया है। भट्टी विक्रमार्का ने इदादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का दौरा करके एक आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इदादरी पावर प्रोजेक्ट तामीर करने के नाम पर बड़े पैमाने पर कर्ज लिए गए। उन्होंने कहा कि रियासत के हालात इंतहाई खतरनाक हैं, इसलिए असम्बली में वाइट पेपर जारी करते हुए अवाम को चंद हक़ाइक़ से वाकिफ करवाया गया। मौजूदा हालात में पूरी मनसूबाबंदी के साथ आगे काम किया जाएगा। एक दिन भी ज़ाय किए बगैर हर महकमे की हालत का जायजा लिया जाएगा। सिर्फ हैदराबाद में न रहकर प्रोजेक्ट के पास जाकर वहां के हालात से वाकफियत हासिल की जा रही है। जहां तक मुमकिन हो सके हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखेंगे और रियासत को सही रास्ते पर चलाने के लिए कोशिश की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मौजूदा बरक़ी खरीदी के 59,580 करोड़ रुपए के बकायाजात हैं। महकमे बरक़ी में गुज़िश्ता हुकूमत बड़े पैमाने पर बकायाजात छोड़कर चली गई। साबिक़ वज़ीर बरक़ी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि अवामी स्कीमात पर कब अमल होगा इसके इंतजार में है, लेकिन हुकूमत कर्ज का राग अलाप रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असम्बली में हमने व्हाइट पेपर का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी कोई रियासत नहीं है जिसने कर्ज नहीं लिया है। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने 90,000 करोड़ रुपए का महकमा बरक़ी में कर्ज लिया है। अपोजिशन में रहकर हुकूमत के कर्ज के बारे में बात की थी, अब हुकूमत में आकर भी वही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज के बारे में बात करने पर अवाम हंस रहे हैं। अगर कर्ज नहीं अदा कर सकते तो बरक़ी इदारे के हवाले कर दें, वो अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो वो बात करें। बार बार भट्टी विक्रमार्का कर्ज का राग अलापने के बजाय अपने महकमे पर तवज्जो दें। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के 6 वादों पर अमलावरी को लेकर अवाम में शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त गुजारी के लिए अवाम से दरख्वास्तें वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि अवाम की तफसीलात जब हुकूमत के पास मौजूद हैं तो फिर दरख्वास्तें क्यों ली जा रही हैं। इजाफा पेंशन की 4,000 रुपए की रकम किसी को भी जारी नहीं की गई, जबकि 2 माह गुजर गए। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तहकीकात से पहले वज़रा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कविता ने वज़ीर आला की गाड़ियों से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर कहा कि इस तरह के बयान से वज़ीर आला के वक़ार में कमी होगी। उन्होंने कहा कि गाड़ियों की खरीदी का मामला इंटेलिजेंस शोबा देखता है, इसमें सियासी कायदीन का कोई अमल दखल नहीं होता। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि समकार सारका जातरा को कौमी त्यौहार का दर्जा दिया जाए। हुकूमत ने सीनियर कानूनदां ए सुदर्शन रेड्डी को रियासत का एडवोकेट जनरल मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया गया। इसका इत्तलाक उनके ओहदा संभालने की तारीख से होगा। ए सुदर्शन रेड्डी तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में एडवोकेट जनरल रहे। उन्होंने 1985 में बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करवाकर बहसत एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू की थी। वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों, बैंक्स और इदारेजात के ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट भी रह चुके हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने 80 नई बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया है। NTR मार्ग पर वज़ीर मौसूफ ने 30 एक्सप्रेस, 30 राजधानी AC बसें, 20 लहरी स्लीपर सीटर बसें को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि RTC बहुत जल्द 1000 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराएगी। 500 बसें हैदराबाद के लिए, 500 बसें अजला में चलाई जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि RTC अमले और बसों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी हो रही है, इसलिए मुसाफिरीन का हुजूम बढ़ गया है। इसकी यकसुई के लिए कोशिशें जारी हैं। मर्द हजरात के सफ़र के मामले में खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। संक्रांति त्यौहार के मौके पर बस चार्जेस में इजाफे से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया है।
शहर में प्रजापालना मराकज़ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की रहनुमाई के लिए मुतहर्रिक है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी के अरकान मुक़र्रना और कॉरपोरेटर्स दिन भर अवाम की रहनुमाई में मसरूफ़ रहे। हुकूमत की जानिब से 6 गारंटीज स्कीमों से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हफ्ते को दिन भर मसरूफ़ रहे। बैरिस्टर ओवैसी ने जिले कलेक्टर अनुदीप व दीगर ओहदेदारों के हमरा हल्क़े असम्बली चार मीनार व बहादुरपुरे के मुख्तलिफ प्रजा पालना मराकज़ का मुआयना किया और अवाम की रहनुमाई की। इस मौके पर मुतालिका अरकान असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तदाई सुदूरो मोतमदीन के अलावा सरगम कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हल्क़े चार मीनार के तहत पुराना पुल के स्लम इलाकों में रहने वाले पारदी बरादरी के मकानात का दौरा किया और जिले कलेक्टर से कहा कि वो इंद्रम्मा इंदालू प्रोग्राम के तहत इस इलाके के मकीनों को मकानात की तामीर के लिए 5-5 लाख रुपए की इमदाद जारी करवाएं। सदर मजलिस ने इन मकीनों से कहा कि वो प्रजा पालना फार्म्स की खाना पूरी करें और जिनको राशन कार्ड की जरूरत है वो एक अलहदा दरख्वास्त मुंसलिक करें। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, पकवान गैस सिलेंडर के लिए KYC करवाने की जरूरत नहीं है। पुराना पुल डिवीजन में सदर मजलिस के हमरा रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, मुतालिका तहसीलदार और स्पेशल ऑफिसर के अलावा कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कायदीन मौजूद थे। बैरिस्टर ओवैसी ने बहादुरपुरे के तहत किशन बाग, असद बाबा नगर और दूसरे इलाकों का कलेक्टर के साथ दौरा किया। मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुतालिका कॉरपोरेटर्स, तहसीलदार, स्पेशल ऑफिसर और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम की रहनुमाई की। उन्होंने मजलिस की जानिब से कायम करदा हेल्प डेस्क का मुआयना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, फॉर्म्स बिला मुआवजा दिए जा रहे हैं। हेल्प डेस्क में फॉर्म्स को भरने की मुफ्त खिदमत फराहम की गई है। बैरिस्टर ओवैसी की रास निगरानी में हल्क़े लोकसभा हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में प्रजा पालना के फॉर्म्स के लिए अवाम की रहनुमाई की जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अपने हल्के के तमाम डिवीजन्स में प्रजा पालना मराकज़ का दौरा करते हुए अवाम की रहनुमाई कर रहे हैं। हफ्ते को अहमद बलाला ने छावनी, मुसरमबाग, अकबरबाग और दूसरे डिवीजन्स का दौरा किया। अहमद बलाला ने अवाम के दरख्वास्त फॉर्म भी पुर किए। जहां भी अवामी शिकायत मौसूल हुई उनकी फौरी एक्सोई की गई। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स का दौरा करते हुए प्रजा पालना मराकज़ का दौरा किया। उनके हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। कतारों में खड़े हुए अवाम की शिकायत की यकसुई की गई और उनकी रहनुमाई की गई। हल्के नामपल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवाम की रहनुमाई की जा रही है। जहां जहां पर प्रजा पालना के मराकज़ कायम किए गए हैं वहां पर मजलिस के लीडर्स मुतहर्रिक देखे गए। अवाम की हर जगह पर और हर मरकज पर रहनुमाई की जा रही है। हल्के बहादुरपुरे में सदर मजलिस की हिदायत पर मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन अवाम की रहनुमाई के लिए मुतहर्रिक देखे गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हफ्ते को हल्के के तमाम डिवीजन्स का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। जहां भी फॉर्म दस्तियाब नहीं थे वहां फॉर्म्स की दस्तियाबी को यकीनी बनाया गया। मुतालिका अमले से बात करते हुए अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर भी मौजूद थे। हल्के राजेंद्र नगर के बलदी डिवीजन अत्तापुर, सुलेमान नगर और शास्त्रीपुरों में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने प्रजा पालना मराकज़ का दौरा करते हुए अवाम की रहनुमाई की। रुकन कौंसल ने हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया। उन्होंने हेल्प डेस्क के अमले को अवाम की मौसर रहनुमाई की हिदायत दी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। जहानुमा डिवीजन के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने डिवीजन के मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा करते हुए अवाम की रहनुमाई की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में प्रजा पालना मराकज़ के पास कायम किए गए हेल्प डेस्क से अवाम की बड़ी तादाद इस्तेफादा कर रही है।
मलकपेट में रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में तमाम मराकिज पर हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। आशा वर्कर्स भी इस सिलसिले में अपनी खिदमात फराहम कर रही हैं। अवाम के लिए खातून कारकुन भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दरखास्तों के अदखाल के लिए हेल्प डेस्क काफ़ी सहूलत बख्श साबित हो रहा है। GHMC हुदूद में अबे हस्तम दरख्वास्तों के हुसूल के मराकज़ का कमिश्नर रोनाल्ड रोस ने जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि 150 वार्ड्स में और कंटोनमेंट इलाके को मिलाकर 650 मराकज़ कायम किए गए हैं। हर मरकज़ पर 4 काउंटर कायम किए गए हैं जहां फॉर्म्स वसूल किए जा रहे हैं। 5,69,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं, जबकि फॉर्म्स से हटकर 71,326 दरख्वास्तें आई हैं। उन्होंने कहा कि आवाम के लिए 40 लाख दरख्वास्तें प्रिंट किए गए हैं। अंग्रेज़ी, उर्दू, तेलुगू में फॉर्म दस्तयाब हैं। अगर कोई दरख्वास्त फरोख्त करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिन फॉर्म्स वसूल नहीं किए जाएंगे। 2 जनवरी से फिर दोबारा फॉर्म्स वसूल किए जाएंगे। बीजेपी के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस माजी में CBI की तहकीकात करने का मुतालबा करने वाली अब खामोश क्यों हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आकर 1 माह हो चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस के मौक़िफ़ पर शक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। BRS के रास्ते पर कांग्रेस भी चल रही है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मौजूदा हालात के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ही जिम्मेदार है। रियासत की आमदनी को लूटा गया है। डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने 23 सवालात किए थे। गुज़िश्ता हुकूमत ने सिर्फ 11 के जवाबात नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी कालेश्वरम के बड़े मसले को छोटा बताकर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत फौरन CBI तहकीकात का हुक्म दे, वरना अवाम की नज़र में कांग्रेस भी मुलजिम बन जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतवफ़ी स्विगी बॉय के खानदान को 2 लाख रुपए की इमदाद हवाले की। सेक्रेटेरिएट में स्विगी में काम करने वाले रिजवान, जो ड्यूटी के दौरान हादसाती तौर पर हलाक हुए थे, उनके अफराद खानदान को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए CM रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए का चेक रिजवान के वालिद के हवाले किया गया। वज़ीर आला ने हाल ही में नुमाइश ग्राउंड में इसका ऐलान किया था। हैदराबाद नुमाइश के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर नशीन नुमाइश सोसाइटी और रियासती वजीर IT जी श्रीधर बाबू ने हफ्ते को नुमाइश के इंतजामात के सिलसिले में जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि हैदराबाद की नुमाइश दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। न सिर्फ रियासत बल्कि पड़ोसी रियासतों से भी लोग नुमाइश का मुशाहिदे के लिए आते हैं और नुमाइश हर उम्र के अफराद के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम करती है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने आवाम से नुमाइश में एहतियाती तौर पर मास्क इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस साल 25 लाख अफराद नुमाइश के मुशाहिदे के लिए आएंगे। 1 जनवरी से 15 फरवरी तक नुमाइश रहेगी। नुमाइश में 2400 स्टॉल्स कायम किए जा रहे हैं। नुमाइश के दौरान खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। मेट्रो ट्रेन की भी खुसूसी खिदमात रहेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। जामे निज़ामिया की जानिब से जश्न शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में इतवार की शब ज़ेर सरपरस्ती मौलाना सैयद नेमतुल्लाह कादरी बाद नमाज इशा तालाब कट्टा सालिम चौक में 18वां सालाना मरकजी महफिल नात प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। दीगर मेहमानान में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी, रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेहराज, साबिक रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान के अलावा मजलिस के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात शामिल हैं। रैतू बाजार मेहदीपट्टनम के पास फुटपाथ पर ठेला बंडी का कारोबार करने वालों को मजलिस की बरवक्त मदद से बड़ी राहत मिली है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस की जानिब से छोटे ताजरीन जो ठेला बंडी वगैरह पर फ्रूट और दूसरे कारोबार करने वालों को चालानात किए जा रहे थे, जिस पर ताजरों ने रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन से शिकायत की। कौसर मोहिउद्दीन ने मुताल्लिका DCP से नुमाइंदगी की, जिस पर उन्होंने ठेला बंडी पर कारोबार करने की फिर से इजाजत दे दी।
चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के मोहम्मद नगर में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ड्रेनेज पाइपलाइन की तनसीब का काम बड़े पैमाने पर जारी था। खुदवाई के दौरान पत्थर आ जाने की वजह से एक हफ्ते से काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़क पर जमा हो गया और राहगीरों को और मुकामी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इत्तला मिलने पर अकबर ओवैसी ने साबिका रुकन बलदिया समद बिन अब्दाद को वहाँ रवाना किया। उन्होंने ओहदेदारों की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर बलदिया से बरसरे मौका फ़ोन पर बात करते हुए ओहदेदारों को पाबंद किया कि जंगी खतूत पर इतवार की सुबह से काम का आगाज करवाएं। मुल्क भर में आज कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया। मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट्स में ज़ेर समाअत मुकदमात की यकसुई के लिए मौका फराहम किया गया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में भी लोक अदालत मुनक्किद हुई। कमिश्नर सिटी पुलिस श्रीनिवास रेड्डी के अलावा एडिशनल प्रेमावती, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज छठवीं, मेट्रोपॉलिटन सेशन जज डी रमाकांत, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन सेशन जज एम जॉनसन ने इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की यकसुई के लिए ये लोक अदालत मददगार साबित होगी। गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों से करोड़ों मुकदमात की समाअत हुई है। कमिश्नर पुलिस और अदलिया के ताउन से लोक अदालत के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने जजेस से भी इज़हार तशक्कुर किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी ने 31 दिसंबर की रात हुसैन सागर झील के आसपास ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। इस सिलसिले में जारी किए गए अहकाम के मुताबिक 31 दिसंबर की रात 10 बजे से दरमियानी शब 2 बजे तक NTR मार्ग और PV NTR मार्ग पर आमद-रफ्त बंद रहेगी। दूसरी तरफ कमिश्नर पुलिस ने नए साल की तकारीब के लिए पब्स, बार और रेस्टोरेंट्स के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। नए साल की तकारीब के लिए 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की दरमियानी शब 1 बजे तक ही इजाज़त रहेगी। ट्रैफिक के लिए कोई खलल नहीं होना चाहिए। नए साल की तकारीब के दौरान नशा आवर अदविया के इस्तेमाल और फहश डांस पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। भवानीनगर के करीब ट्रेन हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। महलूकीन की शनाख्त इमरान और आरिफ पटेल की हैसियत से की गई है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने महलूकीन के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस मामले की जामे तहक़ीक़ात करवाई जाए। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ।
जौहरी, opposite Success School, 7 Toms Road, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। प्रजा पालना के फॉर्म्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रईतु बंधु और पेंशन स्कीम से फायदा उठाने वाले नए दरख्वास्त दाखिल न करें। वजीर आला का जायजा इजलास। BRS हुकूमत ने हर महकमे को मरकूज बना दिया। बरकी खरीदी के 59,000 करोड़ रुपए का कर्ज। बदादरी प्रोजेक्ट का नायब वजीर आला ने किया दौरा। कर्ज का राग कब तक अलापते रहेंगे? 6 गारंटियों पर कब अमल होगा? भट्टी कुमार का अपने महकमे पर तवज्जो दें। साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी का मशवरा। प्रजा पालना मराकज़ पर मजलिस अवाम की रहनुमाई में। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी और अरकान मुक़न्नना दिन भर मसरूफ। हैदराबाद नुमाइश का पीर से होगा आगाज। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। अवाम से मास्क इस्तेमाल करने सदर नशीन सोसाइटी की अपील। और भवानी नगर के पास दिलकराश ट्रेन हादसा, 2 नौजवान हुए जाँ बहक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज़।